FDA کو بڑا دھچکا۔ فیصلاباد کی ترقی کا 20 سالہ ماسٹر پلان منظوری کے 1.5 سال بعد ہی ماضی کا قصہ بن گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 28 مارچ 2024 کو ماسٹر پلان کالعدم قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ 2 رکنی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل مسترد کر دی۔ فیصل آباد میں FDA کا شہری ترقی کے لیے بنایا گیا 20 سالہ ماسٹر پلان ماضی کا حصہ بن گیا۔ ماسٹر پلان 2021-2041 میں جو شہر آئندہ 20 سالہ شہری منصوبے بندی اور ترقی کے لیے تیار کیا گیا تھا اور 27 دسمبر 2022 کو بورڈ آف گورنر کے اجلاس 20 سالہ ماسٹر پلان کی منظوری دی گئی تھی۔ منصوبے کا مقصد شہر کی بڑھتی آبادی، رہائشی اور تجارتی ضروریات، ٹرانسپورٹ اور ماحولیاتی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ سازی کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 28 مارچ 2024 کو 20 سالہ ماسٹر پلان کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ FDA کی جانب سے ہائی کورٹ کے فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی، جس پر ہائی کورٹ کو 2 رکنی بینچ نے FDA کی انٹرا کورٹ اپیل مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ ڈبل بینچ کے جسٹس ملک وقار حیدر آوان اور جسٹس احمد ندیم نے انٹرا کورٹ اپیل کو مسترد کرتے ہوئے ماسٹر پلان کو کالعدم قرار دیے جانے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ ڈیولپرز کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ ماسٹر پلان میں زرعی زمینوں کی رہائشی اور کمرشل مقاصد کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ 20 سالہ ماسٹر پلان کی منظوری کے لیے ماحولیاتی اسٹڈی مکمل کی گئی، نہ NOC حاصل کیا گیا تھا۔ ماسٹر پلان سے ماحولیاتی اور زرعی معیشت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کالعدم قرار دیا گیا ماسٹر پلان منصوبہ فیصل آباد کے تقریباً 140,000 ایکڑ اراضی پر مشتمل تھا۔ 20 سالہ ماسٹر پلان منصوبہ اپنی منظوری کے محض 1.5 سال بعد ہی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ تو دوسری جانب اسموک کا جن قید کرنے کی تیاریاں۔ پنجاب سرکار نے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس پہلا ایئر کوالٹی 4 کا سسٹم تیار کر لیا۔ صوبہ میں اسموگ سے قبل حکومت پنجاب کی تیاریاں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس پہلا ایئر کوالٹی فورکاسٹ سسٹم تیار کر لیا۔ جدید ترین نظام پنجاب بھر میں موسمی حالات اور فضائی آلودگی کی پیش گوئی کرے گا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ فضائی آلودگی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری ہوگی۔ جدید نظام ونڈی یورو جیسے انٹرنیشنل ماڈلز، عالمی فضائی انڈیکس اور مقامی ضروریات کے مطابق کام کرتا ہے۔ سسٹم میں رواں سال لگائے گئے جدید مانیٹرنگ سٹیشنز کا ڈیٹا بھی شامل ہوگا۔ جدید نظام شہریوں کی صحت کے حوالے سے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر بھی بتائے گا۔ خودکار نظام فضائی آلودگی کی مقدار ناپے گا اور موسمی حالات کی تبدیلی کا ریکارڈ مرتب کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں گرین فیلڈ نیا ایئرپورٹ منصوبہ، ایئرپورٹ ڈیزائن، ماسٹر پلان اور فیزیبلٹی کے لیے پیشکش طلب۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تاریخ 23 اکتوبر تک بڑھا دی۔ نئے ایئرپورٹ کے لیے 2000 ایکڑ زمین درکار ہوگی۔ گرین فیلڈ ایئرپورٹ کی تعمیر سے اضافی مسافر اور کارگو فلائٹس کی سہولت ملے گی۔ فیصل آباد میں گرین فیلڈ نئے ایئرپورٹ تعمیر کے منصوبے کے حوالے سے اہم خبر۔ ایئرپورٹ کی تعمیر کے ڈیزائن، ماسٹر پلان، فیزیبلٹی، کنسلٹنسی خدمات کی پیشکش طلبی کی تاریخ میں 23 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں سے 23 اکتوبر تک درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت۔ اس سے قبل 2 اکتوبر کو پیش طلبی کے حوالے سے درخواستیں مطلوب تھی۔ درخواست کے شعبہ پلاننگ ڈائریکٹوریٹ میں جمع کرانا ہوگی۔ فیصل آباد میں نئے ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے 2000 ایکڑ جگہ درکار ہے۔ فیصل آباد گرین فیلڈ ایئرپورٹ کی تعمیر سے اضافی مسافر فلائٹیں، کارگو فلائٹس اڑان بھر سکیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کاروباری طبقے کی آن لائن انٹیگریشن کی ڈیڈ لائن میں ایک بار پھر توسیع کر دی۔ کارپوریٹ سیکٹر اور امپورٹرز کو 15 اکتوبر تک رجسٹرڈ ہونے کی مہلت دے دی گئی، جبکہ جیولرز کی بڑی تعداد ٹیکس دینا تو درکنار ٹیکس نیٹ میں ہی غیر رجسٹرڈ نکلی۔ کاروباری طبقے کے انوائسنگ سسٹم آن لائن FBR کے ساتھ منسلک کرنے کا معاملہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے انٹیگریشن کی ڈیڈ لائن میں ایک بار پھر توسیع کر دی۔ کارپوریٹ سیکٹر اور درآمد کنندگان کو 15 اکتوبر تک کی مہلت دے دی گئی۔ رجسٹرڈ نہ ہونے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ FBR حکام کے مطابق سیلز ٹیکسز کے نظام میں شفافیت لانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں صرف 35,000 جیولرز ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نکلے۔ رجسٹرڈ 35,000 میں سے 15,000 نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائی، جبکہ 14,000 سے زائد جیولرز نے اب تک اپنے انکم ٹیکس گوشوارے ہی جمع نہ کروائے، جبکہ 20,000 سے زائد ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ ذرائع کے مطابق 6,000 گولڈ ٹریڈرز نے انکم ٹیکس ریٹرن 0 فائل کی۔ سونے کا کاروبار کرنے والے جیولرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا FBR کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ غیر رجسٹرڈ تاجروں کے گرد شکنجہ سخت۔ FBR نے غیر رجسٹرڈ تاجروں کے ساتھ
कारोबार के लिए कड़ी शर्त आयद कर दी। गैर रजिस्टर्ड अफराद के नाम पर इनवॉइस बनाने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर या NTN का इंदराज जरूरी करार। सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड अफराद के कारोबार पर सख्ती कर दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल टैक्स में गैर रजिस्टर्ड ताजरों के साथ कारोबार के लिए बड़ी शर्त आयद कर दी। गैर रजिस्टर्ड अफराद के नाम पर इनवाइस बनाने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर देना होगा या फिर NTN का अंदराज जरूरी होगा। बसूरत दीगर इनवाइस तस्लीम नहीं की जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। FBR ने गैर रजिस्टर्ड अफराद को मसनूआत की फरोख्त पर इजाफी टैक्स भी आयद कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन को खसारे में डबो दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। फैसलाबाद से दीगर शहरों को बेशतर ट्रेनों का रूट बहाल न हो सका। सैलाब के बाद ट्रेनों की बंदिश ने पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन को खसारे में डबो दिया। स्टेशन का खसारा 3 करोड़ तक जा पहुंचा। पाकिस्तान कराक्रम और रहमान बाबा एक्सप्रेस 25 रोज से बंद। ट्रेनों की बंदिश के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात में इजाफा। रेलवे हुकाम के मुताबिक मजीद ट्रेनों को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। ट्रेनों की बहाली के लिए तेजी से इकदाम जारी है। ट्रेनों की तवील बंदिश के बायस मुसाफिर सफर के लिए दीगर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सैलाब के आफ्टर शॉक्स कारोबार पर जाहिर होने लगे। सर्दियों के सीजन का कपड़ा तो आ गया मगर गाहक ना आए। ताजर कारोबारी हालात से परेशान कहते हैं कि जनूबी पंजाब और KPK से गाहक नहीं आ रहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अभी इलाकों की तबाही के असरात फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों तक पहुंच गए। सर्दी के सीजन का कपड़ा मार्केटों में आए 1 माह से जायद हो गया मगर गाहक मार्केटों में ना आए। कारोबारी हालात की वजह से ताजर शदीद परेशान। जनूबी पंजाब और KPK में तबाही की वजह से मार्केटों में कारोबारी शदीद मंदी हो गई। होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन के सदर शेख मोहम्मद फैसल का कहना था कि कपड़ा मार्केटों में कारोबार न होने के बराबर है। जनूबी पंजाब और KPK में सैलाबी तबाही की वजह से गाहक मार्केटों का रुख नहीं कर रहे। हुकूमत से अपील है कि सैलाबी इलाकों में बहाली का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। महीने से ऊपर हो गया, सर्दियों का माल आया हुआ है मगर 2 खासकर एरिया जनूबी पंजाब और KPK, इन जगहों पर चूंकि सैलाब आया था तो कस्टमर बिल्कुल ही नहीं है। उन बेचारों की फसलें बिल्कुल रुड़ गई हैं। हम ये कहते हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द दाद रसी की जाए ताकि उनको पैसे मिले, वो आए और काम स्टार्ट हो जाए। ताजरों का कहना था कि सैलाबी तबाही के असरात मार्केटों में आ रहे हैं। सर्दी के सीजन के कपड़े की सेल ताहाल शुरू नहीं हुई। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। FBR ने टैक्स रिटर्न फॉर्म से असाजों की मार्केट की वैल्यू का कॉलम खत्म कर दिया। ताजरों की जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया। टैक्स गुजारों के लिए हुकूमत की जानिब से अहसन इकदाम। टैक्स रिटर्न फॉर्म में असासों की मार्केट वैल्यू का कॉलम खत्म कर दिया गया। टैक्स गुजारों और खसूसी तौर पर ताजरों की जानिब से असासों के कॉलम को खत्म करने के मुतालबात किए जा रहे थे। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख की जानिब से हुकूमती फैसले को सराहा गया। उनका कहना था कि असासों की मार्केट वैल्यू बताना मुश्किल होता था। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की खसूसी काविश से ये कॉलम खत्म हुआ, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना ने जो फैसला किया है हम उसका खैर मकदम करते हैं कि उस कॉलम को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि ताजर बरादरी को और मिल ऑनर्स को इनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि एक खुशगवार माहौल यहाँ पर नज़र आए, ताकि एक अच्छे माहौल में कारोबार हो सके। ताजरों की जानिब से FBR के टैक्स रिटर्न फॉर्म से असासों के कॉलम को खत्म करने पर तसल्ली का इजहार किया जा रहा है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में वकला और जिला इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुमकिन एहतजाज के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर्स और DPO ऑफिस के बाहर एंटी राइट फोर्स की भारी तफरीन आयनात। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के बाद अदालती अमूर मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। एप्का की कॉल पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन की भी कलम छोड़ हड़ताल। जंग में वकला और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा संगीन रुख इख्तियार कर गया। एक तरफ वकला ने अदालतों का बाइकआउट किया तो दूसरी जानिब दफातर की तालाबंदी ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ तहसील बार शोरकोट और तहसील बार अहमदपुर सियाल में भी मुकम्मल हड़ताल की गई। 300 से जायद सेशन और 900 से जायद सिविल केसेस मुतासिर हुए। एप्का की कॉल पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर समेत रेवेन्यू अदालतों में तालाबंदी की गई। मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल करते हुए DC ऑफिस के अहाते में एहतजाजी कैंप भी कायम किया। इस एहतजाज में लोकल
लोकल गवर्नमेंट, सिविल डिफेंस और म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकार भी शरीक हुए। बार एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने छापों के दौरान 3 वकला एडवोकेट बाबर खान लगारी, एडवोकेट समर नुसरत परवाना और एडवोकेट हसनैन अली को गिरफ्तार किया है। मेंबर पंजाब बार काउंसिल चौधरी मुश्ताक ने गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि वकला को निशाना बनाया जा रहा है। ताम पुलिस की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने न आई। जिला इंतजामिया ने डीसी और डीपी ऑफिस कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। एंटी राइट फोर्स के भारी नफरी और प्रिजन वैन तैनात कर दी गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द बांटने के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी मुतहर्रिक। फैसलाबाद के डॉक्टर्स झंग पहुंच गए। मेडिकल कैंप्स का इनेकाद, मरीजों का इलाज जारी। मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। तफसीलात वसीम अजीज की इस रिपोर्ट में देखिए। जंग में दरियाए चनाब बिफरा तो मुतअद्दिद इलाकों को अपनी लपेट में लिया। किसी का माली तो किसी का जानी नुकसान हुआ। मुतासरीन को सैलाब के बाद बीमारियों ने आन घेरा। यंग डॉक्टर एसोसिएशन फैसलाबाद मुतासरीन की मदद को जंग पहुंच गई। नवाही इलाका पीरकोट सदाना में मेडिकल कैंप लगाया और मुतासरीन में अशियाए जरूरियात तकसीम की। स्पोक पर्सन YDA का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में डॉक्टर्स मुतासरा अफराद के साथ हैं। जी, मैं डॉक्टर शाहिद मीर बलोच हूँ, स्पोक्स पर्सन YD फैसलाबाद हूँ। YD फैसलाबाद की तरफ से ये 2 रोज़ा कैंप है। ये पीरकोट सदाना में अंकल मुश्ताक हुसैन की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत बुरा हाल है, लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। यहाँ पे लोगों को जानों का नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी है। मेडिकल कैंप में हामला खवातीन के लिए अल्ट्रासाउंड और अद्वियात की सहूलियात फराम की गईं। गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीना जफर का कहना था कि मुखय्यर हजरात को चाहिए कि मुश्किल की इस घड़ी में इनका साथ दें। हाँ, अभी तक कोई हेल्प नहीं पहुंच सकी। यहाँ के चेयरमैन ने हमें स्पेशली इनवाइट किया और मेरे साथ ये YDAs खड़े हैं और मेरा स्टाफ आया है, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट जो प्रेग्नेंट है उनका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि उनको बर वक्त हेल्प दी जा सके। यंग डॉक्टर एसोसिएशन फैसलाबाद की इस काविश को मकामी चेयरमैन मेहर मुश्ताक हुसैन सदाना सियाल ने भी सराहा। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। कारोबारी अफराद के लिए वक्त और मेहनत की बचत। पासपोर्ट की सहूलत अब होगी फैसलाबाद चैम्बर में दस्तयाब। पासपोर्ट के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ईवान सनत और तजारत के मेंबरान को मुयसर आएगी पासपोर्ट की सहूलत। पासपोर्ट बनवाने के लिए चैम्बर मेंबरान को अब तवील इंतजार या दीगर दफातर नहीं जाना पड़ेगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह के दौरे पर चैम्बर मेंबरान की जानब से मुतालबा रखा गया था। डायरेक्टर पासपोर्ट पंजाब खालिद अब्बास ने टेकल टीम के हमरा फैसलाबाद चैम्बर का दौरा किया। सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसे शम्स गुच्छा का कहना था कि कोशिश थी अपने दौर में बेहतरीन काम करके मेंबरान की सहूलत को तरजीह दी जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक मेरे जो फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, हमारा जो स्टाफ है उनकी फैमिलीज हैं, ताकि वो बाइज्जत तरीके से अपना चैम्बर में आएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे हमने पहले ID कार्ड का किया, इसी तरह आप इंशाल्लाह पासपोर्ट भी आप अपने सेकंड घर आएंगे इज्जत के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। अब आपको कोई ऐसी सिफारिशें कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आएंगे अपना आराम से चैम्बर के अंदर चाय कॉफी भी पिएं और अपना पासपोर्ट भी बनवाएं। सदर चैम्बर रेहान नसीम बराबर, सदर चैम्बर रेहान नसीम, सीनियर नायब सदर कैसे गुच्छा और डायरेक्टर पासपोर्ट पंजाब खालिद अब्बास ने पासपोर्ट ऑफिस के लिए चैम्बर में जगह और मेंबरान की सहूलत का देखा गया। डायरेक्टर पासपोर्ट पंजाब खालिद अब्बास का कहना था कि 1 हफ्ता में भी कम वक्त में ये ऑपरेशनल ऑफिस होगा। सदर चैम्बर रेहान नसीम ने पासपोर्ट सहूलत को बहुत बड़ा इकदाम करार दे दिया। राना सनाउल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि 1 हफ्ता से कम वक्त में वादा वफाक कर रहे हैं। हमारे फैसलाबाद चैम्बर में जो है पासपोर्ट का ऑफिस होना चाहिए, तो खैर उन्होंने मौके पर जो है उन्होंने बिल्कुल इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल वो चैम्बर होना चाहिए। तो फौरी जो है उन्होंने फिर रब्ता करके फिर उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पे पासपोर्ट का दफ्तर बनेगा। और आज हमारे पास खालिद अब्बास हमारे जो DG पासपोर्ट पंजाब के तशरीफ लाए हैं और आज सारा जो डिसाइड कर लिया इंशाल्लाह कल और परसों से हमारा ये फंक्शन हो जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस से मेंबरान उनकी फैमिलीज को जहां पासपोर्ट असूल में फायदा होगा, वहीं लोग चैम्बर मेंबरशिप के लिए फाइलर होंगे। कैमरा टीम के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। के CPO साहिबजादा बिलाल उमर की पुलिस लाइंस फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 माह की कारकर्दगी की तफसीलात पर रोशनी डाली। कहते हैं 8 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका मालिकान तक पहुंचा दिया। 2 करोड़ मालियत की चोरी शुदा गाड़ी और 203 मोटरसाइकिल्स भी मुलजिम से बरामद किए। शहर को क्राइम फ्री सिटी बनाना अव्वलीन मिशन है। मौसर गश्त के जरिए जराइम में कमी लाई जा रही है। तफसीलात तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। सदर फैसलाबाद से तशरीफ लाएंगे अजहर साहब और माल बरामदगी में कार। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने 1 माह की कारकर्दगी पर पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। SSP ऑपरेशन बुशरा जमील और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। CPO बिलाल उमर का कहना था कि 1 माह के दौरान मजमूई तौर पर 8 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। फैसलाबाद पुलिस की जो
गुज़श्ता माह की कार्रवाइयाँ हैं जिसके अंदर DIB और थाना जात के SHO साहबान और मुख्तलिफ अफसरान ने अपनी पेशा वराना कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात को ट्रेस किया और उसमें जो हमारी प्रॉपर्टी के केसेस थे उसमें रिकवरी की। बरामदशुदा 8 करोड़ रुपए का माल मसरूका मालकान के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मालियत की चोरीशुदा गाड़ी भी बरामद कर ली। एक माह के दौरान 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 203 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। CPO बिलाल उमर का कहना था कि गश्त का निजाम मौसर बनाकर जराइम में मजीद कमी लाई जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस प्रॉपर्टी की जो तकरीब है उसमें तकरीबन 8 करोड़ 4 लाख रुपए से जायद की रिकवरियाँ, जिनमें मुख्तलिफ नौयत की रिकवरियाँ शामिल हैं। कैश भी है, ज्वेलरी भी है, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, रक्शे हैं। ये तमाम उन अफराद को जिनके साथ ये वकूफ़ पज़ीर हुए थे उनको वापस कर दिए जाएंगे। CPO बिलाल उमर ने फैसलाबाद को जराइम फ्री शहर बनाने को अव्वलीन मिशन करार दिया। कैमरामैन मोइज अहमद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। मल्टी प्लानट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जानिब से सरीना होटल फैसलाबाद में 2 रोजा दुबई रोड एक्सपो का इनेकाद किया गया। दुबई रोड एक्सपो में डेन्यूब डेवलपर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को शुरका के सामने पेश किया गया। शुरका ने मल्टी प्लानट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की काविश को सराहा और दुबई डेन्यूब प्रोजेक्ट्स में अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। मल्टी प्लानट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जानिब से सरीना होटल में दुबई प्रॉपर्टी रोड शो तकरीब में दुबई के मारूफ डेवलपर्स डेन्यूब के प्रोजेक्ट्स को पेश किया गया। 2 रोजा दुबई रोड शो में डेन्यूब डेवलपर्स के एस्पायर डेन्यूब, डायमंड्स डेन्यूब, YZ102 डेन्यूब, टाइम्स डेन्यूब को ग्राहकों के लिए पेश किया गया। पाकिस्तान की जो करंट रियल स्टेट है ये अभी एक डाउनफॉल में है, तो अभी इसलिए ये वो टाइम है यहाँ के जो रियल स्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें और उनका जो सरमाया जो अभी यहाँ पे वो लगाने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं तो उनको ये एक स्पेस मिल जाए। दुबई रोड एक्सपो में शहर भर से फैमिलीज और कारोबारी अफराद की भरपूर शिरकत। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत 1 बेडरूम से मल्टी बेडरूम्स अपार्टमेंट प्लान पेश किए गए। तकरीब में आने वाले शुरका को मल्टी प्लानट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की टीम की जानिब से रहनुमाई फ्राहम की गई। शुरका ने मल्टी प्लानट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की काविश को सराहा और प्रोजेक्ट को खुश आइन करार दिया। ये कंपनी ऐसी है, कंपनी पे पूरा इत्मीनान है। इस कंपनी पे कुछ भी कोई भी डाउट नहीं कर सकता। मैंने खुद देखा हुआ कि दुबई जाके ये बेहतरीन कंपनी है और पूरा काम करती है और सही काम करती है वहाँ पे। ऐसे लोग जो मतलब कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाह रहे हैं उसके हवाले से जो है आपने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया। स्पेशली आई विल अप्रिशिएट मल्टी प्लानट कंपनी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वी आर वेरी हैप्पी। पहली बार फैसलाबाद में ऐसा मौका मिला है कि हमें कुछ इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए उसको जानना, उसको समझना। दुबई इन्वेस्टमेंट से शुरुका को गोल्डन वीजा के हसूल बारे भी ब्रीफिंग दी गई। CEO फैसलाबाद मल्टी प्लानट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मोहम्मद ताहिर का कहना था कि दुबई प्रॉपर्टी रोड शो का मकसद लोगों को बाएतमाद और महफूज इन्वेस्टमेंट चांस देना है। फैसलाबाद सरमायादारों का शहर है, चाहते हैं कि इनको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक सहूलत फराहम की जाए। यहाँ का जो इन्वेस्टर्स है वो ढूंढ रहा है कि मैं किधर सिक्योर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकूं, तो उसके लिए डेन्यूब डेवलपर्स जो हैं वो हमारी कोलैबोरेशन उनके साथ हुई है, तो उनके तावन से ही हम यहाँ भी ये रोड शो कर रहे हैं। मल्टी प्लानट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से दुबई रोड शो में करम फरमाओं के लिए बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंट भी रखे गए। कैमरामैन कमर भूटा के साथ बिल्लाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वालिदैन और असातिज़ा का राब्ता इंतहाई जरूरी। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में पेरेंट टीचर मीटिंग। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में पेरेंट टीचर मीटिंग का इनेकाद। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फर्स्ट टर्म इम्तहानात के नताइज वालिदैन से शेयर किए गए। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट, प्रिंसिपल उस्मान वली, वाइस प्रिंसिपल साजिद अली भी हमरा थे। अच्छी जो है ना रेपुटेशन है बच्ची की, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है आपके इस सुपीरियर कॉलेज में दाखिल करवा के बच्ची को। स्टाफ अच्छा है इनका, कोऑपरेट करते हैं सारे A to Z सारे स्टाफ। टीचर मीटिंग में डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। वालिदैन की बड़ी तादाद में आमद को खुशाइन करार दिया। जाहिद भट्ट का कहना था कि सोशल मीडिया की भरमार के इस दौर में तालीमी इदारों के साथ साथ वालिदैन को भी बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देना होगा। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि टर्नओवर जो पेरेंट्स का था ये रिफ्लेक्ट करता है
के हमारी सोसाइटी के ट्रेंड को कि पेरेंट्स स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड द फ्यूचर कंसर्न अबाउट देयर किड्स, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब जिस तरीके से हालात चेंज हो रहे हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में प्रिंसिपल उस्मान वली, वाइस प्रिंसिपल साजिद अली और दीगर उस्ताद ने वालिदैन से बच्चों की तलीमी कारकर्दगी के बारे में डिस्कस किया और इसमें बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।